Hi, good morning everyone. Welcome to online ID class. Today finally we'll start with your 12th standard syllabus and we'll begin with chapter number 1, Advanced Web Designing. The first topic under this chapter is HTML forms. So before beginning with the actual syllabus, we'll just have a revision over forms. So let's start. In today's video lecture, we'll do an introduction to forms. We'll see the different form elements. Then we'll learn about input tag and we'll create some elements like text box, password box, radio button, checkbox, submit button and reset buttons. Then we'll practice some few attributes of input tag. So forms are an interactive feature of many websites. I think you must have come across forms when you're browsing net, when you're doing a login to any website. Actually, you are interacting with a form where you put your user ID and password. Another example, say you're doing an online shopping, you're placing your order, you're entering your address and then date of delivery, then your payment details. Actually, you're filling up your details in a form which is shown on that web page. So forms are the primary method for getting data from visitors of the website. So what your form does, your form takes the input and sends the data to the web server on clicking submit button. So what is this web server? Web server is a special computer on net which stores your website and delivers your website to the people across the globe whenever their browser makes a request for the website. Now web server contains a special program called the web server program, which actually does your task of delivering the websites. It is Apache on Linux server, then IIS on Windows server. So your web server has also other pages which does the task of server side job, and these are written in some language called PHP or maybe JSP, or some other languages are used like Perl, CGI, etc. So these server side pages contains programming that will handle the data of your form. So when you click on submit button, your actually form data is sent to the web server. On the web server, these server side pages which are written in PHP will handle your data, will validate your data and store it on the database available on that server. So here in this example, MySQL is the database and PHP is the server side scripting language used here. So your PHP programming logic will validate the form data and store it appropriately on the tables available on your database. And finally, the PHP script will send a response like data saved, or when you're creating an email account opened successfully, etc. And this response is sent back to your website browser. So let's see how to create forms in HTML. तो HTML में फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म एलिमेंट यूज होता है. सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर्म बनाने के लिए. तो इट्स अ कंटेनर टैग. ऑल द एलिमेंट्स विच विल डिजाइन विल कम इनसाइड दिस फॉर्म एलिमेंट. तो ये फॉर्म ओपनिंग टैग और नीचे आएगा फॉर्म क्लोजिंग टैग. ये दोनों जाएंगे बॉडी टैग के अंदर. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स. जैसे ये पिक्चर में आप एक फॉर्म देख रहे हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर पूछा गया. नीचे दो बटन्स दिख रहे हैं आपको. तो ये बॉक्सेस को क्या बोलते हैं HTML में वो देखिए. तो जो भी सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आते हैं तो वो सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्सेस है. फिर नीचे एक ईमेल इनपुट फील्ड है. ये दो सर्कल्स दिए गए वो है रेडियो बटन्स जिसके सामने मेल फीमेल लिखा गया. नीचे दो बटन्स है, ये है सबमिट और रीसेट बटन. सबमिट बटन का काम है आपका फॉर्म डेटा फिल होने पर उसको वैलिडेट करके सर्वर को भेजना. रीसेट बटन का काम है फॉर्म को क्लियर करने के लिए, यानी फॉर्म एक समझ लीजिए जो भी वैल्यूज आपने डाली है उसको इरेज करके फॉर्म जैसे रीलोड स्टार्ट में जैसे लोड हुआ था उसी तरह डिस्प्ले करने के लिए. और कुछ फॉर्म एलिमेंट्स देखते हैं हम. तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन पूछी गई है. तो यहाँ पे रिपीट्स के सामने आप देख सकते हैं वीकली लिखा है. वीकली बॉक्स के बाजू में यहाँ पे राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन एरो है. तो ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स
ये दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करने पे आपका ऑप्शंस पॉपअप होते हैं और उसमें से ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं। नीचे ये अभी रिपीट ऑन, ये यहाँ पे आपको MTWTFSA एब्रीवेशन से डेज ऑफ द वीक के लिए, और इसके सामने एक एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। कुछ चेक बॉक्स में चेक किया गया, तो ये है चेक बॉक्स। चेक बॉक्सेस यूज़ होते हैं जब मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइडेड हो और आपको सभी चूज़ करने हो या कुछ चूज़ करने हो, तब चेक बॉक्स का यूज़ होता है। फिर नीचे एक बॉक्स में डेट दिया गया, ये है हमारा डेट इनपुट फील्ड। फिर अगेन रेडियो बटन्स आर देयर, then there are two buttons here. Now these are not submit and reset buttons, they are normal buttons which have some function. तो इन buttons का यहाँ पे नाम है डन और कैंसिल। तो ये buttons पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये वेब पेज में डिफाइंड रहता है थ्रू क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्ट्स, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा जो बताएगा कि डन दबाने पे क्या होगा, वेब पेज यहाँ पे ब्राउज़र किस तरह रिएक्ट करेगा। ओके, दिस इज़ वन कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्सेस है और नीचे एक बड़ा बॉक्स है जो कि मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में आप टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया HTML के अंदर। तो HTML में ये टेक्स्ट एरिया नाम के टैग से बनाया जाता है। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ऑल दिस फॉर्म एलिमेंट्स। तो ये सब फॉर्म एलिमेंट्स बनाने के लिए मेजर एक टैग है जिसका नाम है इनपुट टैग। तो हम इनपुट एलिमेंट यूज़ करके कई सारे फॉर्म एलिमेंट्स को, डेटा इनपुट एलिमेंट्स को बना सकते हैं। तो योर इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स। देन इट इज़ एन एम्प्टी टैग, यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस टैग का क्लोजिंग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग ही रहेगा ये। तो इट्स ए एम्प्टी एलिमेंट, नॉन कंटेनर टैग है। तो इनपुट एलिमेंट, इनपुट टैग से हम कई सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड, बटन, चेक बॉक्स, देन कलर पिकर, डेट है, ईमेल है, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, देन टेलीफोन नंबर एंटर करने के लिए टेल है। फिर सर्च बॉक्स बना सकते हैं, URL बॉक्स बना सकते हैं। फिर वीक, डे ऑफ द वीक एंट्री करने के लिए वीक बॉक्स दिया गया। तो कई सारे एलिमेंट्स हम, मेजर एलिमेंट्स फॉर्म के हम इनपुट एलिमेंट, इनपुट टैग से बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे और टैग्स है जिसके यूज़ करके हम बाकी के एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो आज हम कुछ ही एलिमेंट्स को बनाना सीखेंगे, इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द इनपुट टैग, then you have to provide the type attribute. So type attribute is the compulsory attribute which will specify what type, what kind of element you want to create and what kind of input field you want to create. जैसे यहाँ पे लिखा है input equal to text, लिखने से ये बनेगा text box। तो फिर उसको एक नाम भी देना है। तो name will be related to what you're asking in that field. Then you can provide the size also। जैसे यहाँ पे size equal to 20 दिया है, तो ये 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग इतना साइज आएगा या 20 पिक्सल का साइज बनेगा। तो योर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट विल डिफाइन अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। जैसे यहाँ एग्जांपल में 4 बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स है विच इज यूज फॉर एंटरिंग यूजर नेम, एज, सिटी एंड कमेंट। नेक्स्ट विल सी हाउ टू क्रिएट अ पासवर्ड बॉक्स। फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड बॉक्स यू हैव टू राइट द इनपुट टैग विथ टाइप इक्वल टू पासवर्ड एज द वैल्यू in the type attribute. Then again provide the name. If you want, you can provide the size. What's the difference between password box and text box is that your characters entered in the password box, password field are masked. Mask का मतलब होता है जब आप पासवर्ड बॉक्स में टाइप करोगे तो आपको आपके कैरेक्टर्स नज़र नहीं आएंगे, उसकी जगह स्टार नज़र आएगा, यानी एस्टेरिक नज़र आएगा या फिर सर्कल नज़र आएगा। तो ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, एक है टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा है पासवर्ड बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में देखो आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहा है, लेकिन पासवर्ड बॉक्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टार नज़र आया है, एस्टेरिक सिंबल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन। अभी रेडियो बटन क्या होता है, एक सर्कल नज़र आती है, सर्कल को क्लिक करने पे उसके अंदर एक डॉट नज़र आता है, तो ये होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन यूज़ होता है जब कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड है और उसमें से एक ही ऑप्शन हमें चूज़ करना है। सो
इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी गिवन चॉइसेस, यानी कई सारे चॉइस में से आपको एक ही ऑप्शन चूज करवाना है, तो अब आप उसको उन चॉइसेस को रेडियो बटन में डिफाइन कीजिए। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन। रेडियो बटन बनाने के लिए आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, फिर उसको नाम देना है और फिर वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि रेडियो बटन सिर्फ सर्कल डिस्प्ले करता है, तो उसको क्लिक करने पे उसकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, तो वो वैल्यू हमको वैल्यू एट्रीब्यूट से डिफाइन करनी है। फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सर्कल के सामने एक डिस्प्ले टेक्स्ट भी होता है, तो वो उसके सामने ही लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है मेल, ये एग्जांपल है, हम जेंडर के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डिस्प्ले टेक्स्ट है। और फिर आपको वैल्यू में भी मेल लिखना है, बिकॉज डिस्प्ले टेक्स्ट विल बी नॉट सेंड टू द सर्वर, इंस्टेड द क्लिक्ड रेडियो बटन्स वैल्यू विल बी सेंड टू द सर्वर। यानी आप सबमिट बटन जब दबाओगे तो इनपुट टैग जैसे रेडियो बटन है, तो उसमें उसकी जो वैल्यू थी वो सर्वर को भेजी जाएगी। नेक्स्ट अभी फीमेल रेडियो बटन के लिए कैसे डिफाइन किया, देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल। तो यहाँ देख सकते हैं कि नेम दोनों के सेम रखे गए, क्यों? क्योंकि ये दोनों को ग्रुपिंग किया गया, तो जब रेडियो बटन्स को ग्रुप करना हो तो आपको उनके नाम सेम रखना है। अगर अलग रख दोगे तो क्या होगा, दोनों ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे, आप दोनों ऑप्शन को चूज कर सकते हो। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग रेडियो बटन। विल सी वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज योर आंसर टू द क्वेश्चन, ये पी टैग से डिफाइन किया। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, येस, नो, मे बी, और तीनों के डेफिनेशंस आप देख लेना यहाँ पे। तो देख ली सबका नाम सेम है, नेम में जो वैल्यू दी है एएनएस वो सबकी सेम है, नेम इक्वल टू एएनएस। फिर वैल्यू जो सर्वर को पास होने वाली है वो है यहाँ पे वैल्यू, यस, यहाँ पे है वैल्यू इक्वल टू मे बी। So I think you have understood how to create a radio button. Next we'll see checkboxes. Now checkboxes are exactly opposite of radio buttons. Checkboxes are displayed in the form of small boxes on which checks will arrive. Checks will be displayed. यानी टिक मार्क डिस्प्ले होगा। और ये कब यूज़ होता है कि जब आपको ऑप्शंस में से मोर देन वन ऑप्शन चूज करवाने हो, तब चेकबॉक्स यूज़ होता है। यानी you may want to select 0 or more options from the multiple options provided there. तो ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे दिया है लैंग्वेजेस नोन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप चारों में से एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हो, सभी ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। तो आपको चाहिए कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करना है तो कोई भी ऑप्शन मत चूज करो। तो सभी पॉसिबिलिटीज अलाउड है चेकबॉक्स के अंदर। तो ये एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे मैंने हॉबीज का ऑप्शंस लिए हुए, तो यहाँ पे एक छोटा सा सेलेक्ट योर हॉबीज एक हेडिंग है, तो ये हमने यहाँ लिखी। फिर फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग, तो रीडिंग के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल टू h_read लिखा है, वैल्यू रीडिंग, और उसके सामने ये डिस्प्ले टेक्स्ट जहाँ पे R कैपिटल है। तो याद रखिए डिस्प्ले टेक्स्ट सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, ये सर्वर पे नहीं जाता है। वैल्यू में जो वैल्यू देंगे वही सर्वर पे चली जाएगी। नेक्स्ट सर्फिंग हॉबी के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल टू h_surf, वैल्यू इक्वल टू सर्फ, और यहाँ पे लिखा है सर्फिंग। तो अगर ध्यान दीजिए वैल्यू में जो लिखेंगे वही सर्वर को चला जाता है। तो सर्वर में PHP वेब पेज पे लॉजिक रहता है, जो डेटा कलेक्ट करके उसे डेटाबेस में क्या स्टोर करना है वो लॉजिक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होते हैं वो नॉर्मली कोड वर्ड में लिखी जाती है और डिस्प्ले टेक्स्ट फुल रहता है। अभी नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूज़िक, इसका भी डेफिनेशन सेम है। अभी तीनों में अपने क्या देखा कि सबके नाम अलग अलग है। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रेडियो बटन है। रेडियो बटन में क्या होता है कि नाम सबके सेम होते हैं, चेकबॉक्स पे नाम सबके अलग अलग रहेंगे, क्योंकि checkbox allows you to choose all the options or more than one the option, so the name should be different. तभी नाम्स अलग रहेंगे, तभी सभी ऑप्शंस सर्वर तक पहुंचेंगे। नहीं तो अगर आप नाम सेम रखते हो तो आपका एक ही ऑप्शन सर्वर पर पहुंचेगा। ओके,
Next, do some activity. Now what you have learned now in radio checkbox and text boxes and password box, let's create a web page on that. So this is a simple web page. Submit your information where user has to submit first name, last name, then he has to provide gender information or hobbies. So let's see how to create this. So your HTML web page will start with, as you know, doc type HTML. Then comes your head section. In head section will provide one title, that is form example. Next, your body tag will start. We are providing one background color with hexadecimal code. Then we'll give one heading using h1 tag. Now your form begins. As you know, as I've told, your form will start with form tag. So at present we are just writing form tag. We are not providing any attributes inside the form tag. Next, you'll define the input field for your first name. So you have to write first name as the heading. Then input type equal to text, name equal to fname. I have provided name equal to fname. Then 2 BRs will put so that there is a sufficient spacing between the elements. Then we are writing last name as the display text. Then input type equal to text, name equal to L name. Okay, it's L name. So your first name and last name input fields are created. Next we'll create the gender radio buttons. So again 2 BRs, display text gender. Then to define the male option, type equal to radio, name equal to gender, value equal to male. Then close the angular bracket. Then in front of that the display text will come, which I have written in capital letters, male. Same way for defining the radio button for female option. So both the radio buttons name will be same. Next comes the hobby section. Again we will put 2 BRs. Then the display title hobbies, or you can say it's a label. So here we are writing input type equal to checkbox, name equal to h_read, value equal to reading. Then reading is your display text, or you can say it's a label. Next comes the input type equal to checkbox, name equal to h_music, value equal to music. Then our display label is listening to music. Then 2 BRs, we are writing input type equal to submit. We are creating submit button. For creating submit button, input type equal to submit will come. Then we'll provide a value for it. This is actually the display value. If you do not provide the display value in submit button, by default the submit query will come as the display text on that button. The same way for input type equal to reset, we are providing value equal to reset in capital letters. Then finally we close down the form tag. Then body tag is closed, and finally your HTML tag is closed. So what are the submit and reset button? As you know, submit button, when you click on submit button, the form data goes to the server. So as we have discussed earlier, form data is handled by a web server page, which is written in some scripting language, and which will process your input data, and finally it stores that data into database. So what's the name of that server page where you will specify? It is specified in action attribute. Now this action attribute is written within the form tag. So we'll be learning about this action attribute in later video lectures. Next, reset button. It is used to just reset the form values. That is to clear the form. So let's see practically, which I have already created. Our notepad form is already ready. So let's execute this. So here I have executed, and you can see your form is displayed. I'll type some information. Gender, I'll choose some hobbies, and I'll click on submit button. Okay, I'll choose this only, reading and surfing. I click on submit. The information goes to the server, but since we have not defined where that server is in the action attribute, at present you can see the form is reloaded, and whatever form element values you have entered
will appear in the URL. You can see the address bar, you can see question mark, then the name of the input field equal the name of the value which you have provided, then ampersand symbol is used, then the next input field name and value. So you can see that name equal to value pairs of the form elements have gone to the URL. Okay, this is the default behavior of the form. When you click submit button, all the form element names and values will come here separated by ampersand sign. So again we enter the data. Now this time what we'll do, we'll use the reset button. What happens when you click reset button? The values get clear from all the input fields. Only the default values will remain. Now here you can see one checkbox on listening to music. Already actually I have made this option default value, and it got pre-selected. So we'll learn how to do the pre-selection later on. So this is how to create a simple HTML form. So you can pause the video and copy this example and write in your notebook. It is in two parts. The next window, see that you write different names for checkbox options. This is your output. Now let's talk about these attributes which we have used in input tag. So हमने सबसे पहले type attribute यूज़ किया. वो तो पता है, टाइप स्पेसिफाइज कि आपको कौन सा इनपुट एलिमेंट बनाना है, कौन सा इनपुट एलिमेंट डिस्प्ले करना है. एज आई टोल्ड, यूजिंग इनपुट टैग ऑलमोस्ट 22 और 21 इनपुट टाइप एलिमेंट्स यू कैन क्रिएट. फिर है नाम, which will give a name to that input element. So name will be always related to what information you are asking in that input field. Next is size, specifies the width of an input field. So this is used for text box, password box, then email box, URL box, search box, number not number box, it will not come. So only few boxes we can use this size attribute. Next is max length. Max length specifies the maximum number of characters you can enter in the input field. तो साइज है डिस्प्ले करने के लिए कि कितना बड़ा बॉक्स चाहिए. मैक्स लेंथ है कि आप उसमें कितना कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो. लेट्स सी प्रैक्टिकली. We go back to our form1.html and we'll do some changes here. See, I'll put size equal to 30 and I'll put max. Sorry, first we'll check this. What happens when you put size equal to 30? We'll save this and we'll reload your page. I'll just remove this. So page is reload. You can see the first name input box has increased its size to 30 characters. So we can enter as many you want. By default you can enter as many, that is maximum. Okay. Now what I will do, I'll put max length. Length equal to just say 6 characters only. So I'll save this form. Now we'll reload the form. Now let's see. Now see, I'm entering v cars, so I cannot enter more than this. See, so only 6 characters now your input box will accept. So your max length attribute limits the number of characters you can enter into that input field. Size attribute will specify how large that input field should be visible. Okay. तो दोनों का मतलब अलग है. साइज से सिर्फ डिस्प्ले साइज नज़र आती है और मैक्स लेंथ से हम लोग लिमिट करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स यूज़र शुड एंटर. जैसे नाम नॉर्मली किसी का 50 कैरेक्टर्स के ऊपर किसी का होता नहीं, तो नॉर्मली whenever name option is there you can write 50 characters. फुल नेम अगर है तो 50 कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा किसी का होता नहीं. ओके, सो दिस इज द टाइप, नेम एंड साइज एंड मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट कम टू वैल्यू एट्रीब्यूट. वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए उस इनपुट फील्ड में. जैसे हमने रेडियो बटन और चेक बॉक्स में हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड किए, इसी तरह हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को भी वैल्यूज़ दे सकते हैं.
जैसे मैं अगर चाहूँ तो जब लास्ट नेम डिस्प्ले हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जोशी लिख के आनी चाहिए। तो क्या होगा, जब भी फॉर्म लोड होगा तो ऑलवेज डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी जोशी। तो लेट्स रिफ्रेश योर पेज। तो देखिए अभी रिफ्रेश किया तो देखिए मैं इनपुट कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जोशी आ गया। तो आप इसे रब करके अपनी नई वैल्यू डाल सकती है या फिर वही वैल्यू रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है चेक्ड एट्रीब्यूट। चेक्ड एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स ओनली। इट इज यूज्ड टू प्री सेलेक्ट द ऑप्शन व्हेन द पेज लोड्स, यानी कुछ कुछ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसे ऑन ही रखना है आपको, चेक बॉक्स में हो या रेडियो बटन में हो, तो आपको सिर्फ ये एट्रीब्यूट यूज़ करना है चेक्ड। ये जो एट्रीब्यूट है ये बूलियन एट्रीब्यूट है, बूलियन यानी इसको वैल्यू नहीं देते, सिर्फ लिखते हैं चेक्ड। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रेडियो बटन में जाके मेल जो ऑप्शन है यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चेक्ड। ये आप कैपिटल में लिख सकते हो, नहीं तो स्मॉल पे। देखो यहाँ पे मैंने चेक लिखा, कहाँ पे लिखा है, ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होने से पहले। ना ही इसे डबल कोट्स पे लिखना है, सिर्फ चेक लिखना है डायरेक्टली, नो वैल्यू इज टू बी गिवन। उसी तरह हम लोग ये यहाँ पे एक चेक लिखा है लिसनिंग टू म्यूजिक ऑप्शन में, ये मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ये बताने के लिए आप चेक्ड स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में भी। ओके, तो मैंने दो ऑप्शंस परमानेंटली ऑन कर दिए, डिफ़ॉल्ट ऑन, मेल ऑप्शन और लिसनिंग टू म्यूजिक। तो लेट्स सेव दिस एंड विल रीलोड योर पेज। तो देखिए यहाँ पे मेल ऑप्शन ऑटोमेटिकली पेज रीलोड होते ही ऑन हो गया, या लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन हो गया। तो ये हुई इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी इन वैल्यूज़ को हम कुछ चूज़ नहीं करते तभी भी ये वैल्यूज़ परमानेंटली आपके सर्वर तक पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पे ये गई यहाँ पे। ओके, तो अभी हम चेक निकाल देते, तो लेट्स सी व्हाट डिफरेंस विल कम। देखो चेक यहाँ निकाल दिया, यहाँ पे भी मैंने चेक निकाल दिया, और यहाँ वैल्यू इक्वल टू जोशी डिफ़ॉल्ट वैल्यू निकाल दी। एंड विल रीलोड योर पेज। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन चले गए, मेल डी सेलेक्ट हो गया, लिसनिंग म्यूजिक भी डी सेलेक्ट, यहाँ पे जोशी भी नहीं आया। तो आपका फॉर्म टोटली ब्लैंक फॉर्म आया है। आप चाहे जो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, या फिर हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस कुछ रख सकते हैं बाय यूजिंग चेक्ड एट्रीब्यूट एंड वैल्यू एट्रीब्यूट इन टेक्स्ट बॉक्सेस। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर हाउ टू यूज़ दीज एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा और कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे डिसेबल्ड, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, ऑटो फोकस, फिर और एक है पैटर्न एट्रीब्यूट, फिर है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट। इनका यूज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Now it's a time for homework. Please copy this homework. You have to create this form which has I think 4 boxes, 2 check boxes, then 2 radio buttons. और ये डिपार्टमेंट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, ये हमने पढ़ाया नहीं, तो इसको आप ओमिट कर दीजिए, लेकिन सबमिट रिसेट बटन है। एक सुटेबल हेडिंग दे दीजिए इस फॉर्म को। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। नेक्स्ट होमवर्क, ये एक सिंपल सा पेज बनाना है। दिस इज होमवर्क नंबर 10। Pause the video and copy in your notebook. 1 बॉक्स है, 4 चेक बॉक्स है और सबमिट बटन है। नेक्स्ट होमवर्क नंबर 11, ये आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है। यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है और एक पासवर्ड बॉक्स है, 4 रेडियो बटन, फिर चेक बॉक्स, फिर लॉगिन बटन और रीसेट बटन। भाई लॉगिन बटन क्या है, एक्चुअली ये सबमिट बटन ही है, इसका नाम लॉगिन करना है आपको, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन लिखकर। तो ये हुए 3 होमवर्क्स HTML फॉर्म्स पार्ट 1 के लिए। इसके बाद कुछ नोट्स मैंने रखे हुए, जस्ट पॉज कीजिए वीडियो को और थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, जो हमने आज सीखा। टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, फिर हमने सीखा चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट सबमिट बटन, रीसेट बटन। And with this we come to the end of our video. So in our next lecture we will learn how to use other input type attributes, and we'll learn some new HTML form elements. So with this I end our lecture. Thank you very much.